Praise the Lord for this new day that God has given us. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस नए दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। I wanted to wanted to tell when in the Old Testament, God had a plan for the Israelites. When for the people of the Old Testament, God had a plan for their lives. और पुराने नियम में जो इस्राएली लोग थे उनके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। He told the Israelites that after they were in the land of Egypt, they said God said that you will be one day you will I will give you the land of Canaan. और परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को कहा जो कनान देश जो मिस्र के देश में थे कि एक दिन मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। And the Old Testament is full of things which is about the earthly kingdom, the earth kingdom of the earth. और पुराने नियम में हम ऐसे कई चीजों को देखते हैं जो इस पृथ्वी के संबंधित राज्य के बारे में है। It is about earthly blessings and earthly things that God will give the people in the Old Testament. और इस पृथ्वी पर की या शारीरिक आशीषें और शारीरिक चीजें हैं जो परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को देना चाहता था। We don't see much of the heavenly things that God says in the Old Testament. और पुराने नियम में स्वर्ग की काफी बातों को हम परमेश्वर को कहते हुए नहीं देखते। But once we come into the New Testament and when we read about John and Jesus, they are saying, repent for the kingdom of God is at hand. पर एक बार जब हम नए नियम में आ जाते हैं और हम यूहन्ना और यीशु मसीह को देखते हैं कि वो कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। So when Jesus was on the earth, when he came down from heaven, Jesus was in heaven first, and then he came down and came down on the earth. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो पहले वो स्वर्ग में था और उसके बाद वो इस पृथ्वी पर आए। So Jesus had tasted a little bit of heaven when and then he knew what heaven was like. और इसलिए यीशु मसीह ने पहले से ही स्वर्ग को चखा था और वो जानता था कि स्वर्ग कैसा है। Jesus knew what kind of life was in heaven. He had experienced it. यीशु मसीह जानता था कि स्वर्ग में किस प्रकार का जीवन है, उसने उस जीवन का अनुभव किया था। And Jesus actually showed it to us when he was on the earth what heavenly life is like. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो उसने हमें इस बात को दिखाया कि स्वर्गीय जीवन असली में होता कैसा है। And Jesus did not just die for our sins just so that we will go to heaven. He wanted us to experience that life of heaven on earth when we are now living on this earth. और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने प्राणों को इसलिए नहीं दिया ताकि हम सिर्फ जब मर जाएंगे तब स्वर्ग जाएंगे, पर यीशु चाहता था कि इस पृथ्वी पर रहते वक्त हम उस स्वर्ग के जीवन को महसूस अनुभव कर सके। So it is a very great blessing that God has given us in this earth that we can, like we read that verse, memory verse, taste and see that the Lord is good. और ये एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने हमें दी है कि जब हम इस पृथ्वी पर है तब हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, जैसा हमने वो वचन में पढ़ा कि चख कर देखो कि यहोवा भला है। God wants us to taste the life of heaven now on this earth. परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्वर्ग के जीवन को इस पृथ्वी पर होते हुए चख कर देखें। There is a false gospel that goes on that Jesus has saved me, so now I can live as I want, and then in heaven I will have no problems. एक झूठा सुसमाचार इस प्रकार से है कि आज मेरी जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा और मैं जैसा चाहूं वैसे जी सकता हूं। And once I am in heaven, I am perfect. I can live as I want on this earth. और जब मैं स्वर्ग चले जाऊंगा तभी मैं परिपूर्ण होऊंगा, इसलिए इस पृथ्वी पर मैं जैसा चाहूं वैसे जी सकता हूं। But that is not what Jesus. We are said to follow me. Jesus said, and Jesus showed us how he lived. पर ये सुसमाचार नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ और यीशु मसीह ने हमें उसके जीवन से दिखाया कि हमें कैसे जीना है।
So what are the things that we can see in heaven? I was just thinking about those things. और मैं आज इस बारे में सोच रहा था कि स्वर्ग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. Well, one thing that we see in heaven is people who are in heaven are completely cleansed in the blood of Jesus. They don't have any consciousness of their sin. और पहली बात जो हम देखते हैं कि जो लोग स्वर्ग में हैं वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए हुए धोए हुए हैं. उनको उनके पाप के बारे में कोई भी उनको वो महसूस नहीं होता. They live in the reality of their sins, all confessed, forgiven, cleansed, and justified in the blood of Jesus. और वो इस वास्तविकता के अंदर जीते हैं कि उनके सारे पाप क्षमा हुए हैं, वो निर्दोष ठहराए गए और धर्मी ठहराए गए हैं यीशु मसीह के अंदर. And they are clothed with the righteousness of Christ. और यीशु मसीह के धार्मिकता से वे ढक गए हैं. So that is the way I have to live every day of my life here on this earth. That is the heavenly life that God wants me to have. और इसी प्रकार मुझे हर दिन इस पृथ्वी पर जीना है. ये एक स्वर्गीय जीवन है जो परमेश्वर चाहता है मेरे पास हो. In Matthew 22, we read of Jesus spoke about a marriage feast. और मत्ती उसके 22 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक विवाह भोज के बारे में बताया. It is about many people were invited and some people did not want to. They did not come. So then other people were invited. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि बहुत लोगों को आमंत्रित किया गया था पर कई लोग आना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे लोगों को बुलाया गया. And it is written in the 11th verse that the king came and looked over the dinner guests. His man there who was not dressed in wedding clothes. और मत्ती 22 उसके 11 वचन में लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था. And it says that the king told the servants to bind him hand and foot and throw him to the outer darkness. और वहां लिखा है कि राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांधकर बाहर के अंधियारे में इसे डाल दो. So that means that every day of my life, it is not just in heaven. This is not talking about heaven. This is about every day of my life here on the earth. I need to be fully assured of cleansing in the blood of Jesus and His righteousness on me all the time. और इसका मतलब है कि मेरे जीवन के हर एक दिन, ये स्वर्ग के बारे में नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर मेरे जीवन के हर एक दिन मुझे इस बात को समझना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूं और मेरे पास उसकी धार्मिकता है. One more thing that we see in heaven is those who are in heaven, they don't say that because I lived, God chose me because I lived a righteous life. It is totally depend. It is God who has saved them and chosen them. और दूसरी एक बात जो हम स्वर्ग में देखते हैं, जो स्वर्ग के अंदर जो लोग हैं वो ऐसा कभी नहीं कहते कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मेरा जीवन बहुत धर्मी था. वो हमें उनका चुनाव बस इस वजह से हुआ, पूरी तरीके से वो परमेश्वर की ओर से था. Always having the attitude that the thief on the cross had. When just before his death, he didn't do anything righteous, but he was justified and cleansed, and he entered paradise without having a single righteous act in his life. That means that that's what. और हर समय उस क्रूस के यीशु मसीह के बगल में जो चोर क्रूसित हुआ था, उसके जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि उसने अपने जीवन में एक भी धर्मी काम नहीं किया, बल्कि उसके बावजूद वो स्वर्ग गया. That means that I don't get this great gift that God has given me. It is not because of what I have done. It is because of what He has done for me. इसका मतलब जो ये महान दान, महान चीज जो परमेश्वर ने मुझे दी है, वो मेरे कोई कामों से मुझे नहीं मिली है, वो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है. So that I will have only one word to say, Lord, I am not worthy of this. It's only because you are worthy and you have saved me. और फिर मेरे पास एक ही शब्द होंगे कि प्रभु मैंने ये सब मुझे मिला, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तू योग्य है प्रभु. And it is not only in heaven, but now on the earth I can experience that, like, Lord, it's only because of you are worthy that you have saved me. और ये सिर्फ स्वर्ग में नहीं बल्कि हम यहाँ पृथ्वी पर भी इस जीवन का अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु मैं अयोग्य हूँ पर केवल तू योग्य है, इसलिए तूने मुझे मेरा उद्धार किया. But once I am really saved,
because Paul said that his love constrains me. God's love will constrain us to do things for him. और एक बार हमारा उद्धार हो जाता है तो जैसा पौलुस कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है ताकि हम उसके लिए कुछ कामों को करें. We cannot live this heavenly life without being filled with the Holy Spirit. ये स्वर्गीय जीवन हम तब तक नहीं पवित्र आत्मा के भरपूरी के बिना नहीं जी सकते. The Holy Spirit is the person who brings the presence of God in our lives, as we heard yesterday evening. और पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के उपस्थिति को हमारे जीवन में लाता है, जैसे हमने कल शाम को सुना. So we always sense the presence of God before we do something. We know that God is seeing this what I'm doing. और अब हर समय उस परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर जी सकते हैं कि हम ये इस बात को समझेंगे कि हम जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर हमें देख रहा है. Small things I do in secret which no one is seeing. God is seeing my thoughts which no one is able to see, but God is seeing it. ऐसी चीजें जो मैं गुप्त रीति से करता हूँ, मेरे विचार जिनको कोई भी नहीं देख सकता, उन सारी चीजों को परमेश्वर देखता है. If I can always when I fall in any thought or any action that no one is seeing, if I can always be alert to that and confess and forsake it, that's the way God wants us to live. मेरे किसी भी विचार में या किसी भी जो कुछ मैं करता हूँ उसमें अगर मैं गिर जाता हूँ तो हर बार अगर मैं इसको ध्यान रखूं कि परमेश्वर जानता है और उसको मैं कबूल करके छोड़ देता हूँ. So this in heaven, one more thing we see in Revelation 14. और स्वर्ग में एक और बात हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय. और उसका चौथा वचन. It says that there is a group of people in heaven. It says about them that these are the ones who have not been defiled with women, और they have kept themselves chaste. और स्वर्ग में एक ऐसा झुंड है जिनके बारे में यहाँ लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. और ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं. And no lie was found in their mouth. 5th verse. और 5वां वचन, उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था. And they are blameless. और वे निर्दोष है. So these are the things that we can see in the people who are in heaven. They have these attitudes in them. और जो लोग स्वर्ग में होते हैं उनके अंदर ऐसे गुणों को या ऐसे चरित्र को हम देखते हैं. Maybe when we are born again, we don't have this first but we can aim for this life where I follow Jesus wherever he is telling me to go and listening to him all the time. शायद जब हमारा उद्धार होता है तब हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होती, पर हम इसको अपने जीवन का ध्येय बना सकते हैं कि हम हर समय यीशु मसीह के साथ चले और वो जहां जाए उसके पीछे हम हो ले. That is like always my ears are open to listen to Jesus what is the Holy Spirit what he is telling me. और हर समय मेरे कान इस बात के लिए खुले हैं कि मैं उसको सुनूं जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है. Paul says in 2 Corinthians 11, 2 and 3 about being jealous for you with a godly jealousy. और प्रेरित पौलुस जो था वो 2 कुरिन्थी उसका 11 और उसके दूसरे और तीसरे वचन में कहता है कि एक ईश्वरीय धुन के वजह से वो लोगों के प्रति उसको एक जलन सी थी. Because he says, I betrothed you to one husband so that to Christ I may present you as a pure virgin. और वहां लिखा है क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं. We can ask the Holy Spirit to always help us to be reminded of one thing, that I am going to be the bride of Christ. I cannot make myself defiled with the world, the things of the world.
और हम ये बात पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि वो हर समय हमें इस बात का स्मरण दे कि हम यीशु मसीह के दुल्हन होने वाले हैं, और इसलिए इस पृथ्वी पर जो भी हमें भ्रष्ट करता है, ऐसे कोई भी चीज से हम अपने आप को गंदा या भ्रष्ट नहीं कर सकते। Holy Spirit can show us the love of Christ, and so precious that love is, so that other fade away before that. और पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह का कितना बहुमूल्य प्रेम है उसको दिखा सकता है, और उसकी वजह से जो हमारे बाकी प्रेम है वो सारे कम हो जाएंगे। That is one area that we need to always be alert, because as it is written in the third second Corinthians 11:3, it is written that the serpent deceived Eve by his craftiness. So that is what the devil is always trying to do, to make us go away, like no, maybe just come to that closeness to Jesus is not there. और ये एक क्षेत्र है जहां हमें हर समय सतर्क होना है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 11:3 में लिखा है कि जो शैतान है वो अपने चतुराई से उसने हवा को बहकाया, और उसका वही काम है कि वो हमें इससे बहकाता है। Maybe ask the Holy Spirit to bring us closer and closer to His love, and always being reminded of His love and meditate on His love. Otherwise, there's always a chance that the things of this world or something other than Jesus will attract us. और आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हर समय हमें इस प्रेम के नजदीक लाए, हमें इस प्रेम को याद दिलाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो ये हो सकता है कि ये जो पृथ्वी पर की जो चीजें हैं वो हमें भटका देंगी। It's written in one more thing that we see in heaven is in Revelation 21:21. और स्वर्ग की एक और बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 21 वचन। It's written there that the streets there are made of gold. और वहां लिखा है कि जो नगर की जो सड़कें हैं वो सोने के समान थी। Like it's pure gold, like transparent glass. और यहाँ लिखा है कि स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। So what does that show us is that the things of earth, the things of heaven are the things of earth. Whatever is the most attractive is on the below our feet in heaven. और ये इस बात को दर्शाता है कि उस पृथ्वी पर जो कोई चीज है जो हमें बहुत प्रिय है, वहां स्वर्ग में उसका स्थान हमारे पैरों के नीचे है। So what is always on my mind? Is it about material things and money and anything that this world is considering big? Is that big in my eyes? और इसलिए वो कौन सी बात है जो हर समय मेरे मन में बहुत ऊपर स्थान होती है? क्या संसार जिन चीजों को बहुत बड़ा या अच्छा समझता है, उन्हीं बातों के बारे में मैं सोचता हूँ? Is it about what is in my mind always? That is what I will seek after. क्योंकि जो बात हर समय मेरे मन में होगी, मैं उसी के पीछे उसी को पाने का यत्न करूंगा। What is always uppermost in my mind, that is the only thing I will go after. और मेरे मन में जो सबसे प्रथम स्थान या जो सबसे ऊंचा स्थान जिस चीज को है, उसी चीज के पीछे मैं लगूंगा। So let us judge ourselves and ask the Holy Spirit to reveal things that we consider as more attractive than God and than Jesus in our lives. और आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे, हम अपने आप का न्याय करें कि पवित्र आत्मा हमें दिखाए ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर से भी ज्यादा आकर्षक लगती है। Because Jesus said that God and money are opposites. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर और पैसा ये विपरीत है। If I love God, I will despise money, material things. So I should judge myself every day whether money, yeah. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो फिर मैं पैसे से और ये जो भौतिक चीजें हैं उनसे नफरत करूंगा, और इसलिए मुझे हर दिन अपने आप का न्याय करना है। Then in John 4:7, और उसके बाद यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 7वां वचन। here actually John 4, the beginning verses are about Jesus going to the well, by the well, by Jacob's well. और यहाँ हम यूहन्ना उसके 4थे अध्याय के शुरुआत में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस याकूब के कुएं के पास जाता है।
So there he meets a woman who is drawing water from a well. और वहां वो एक स्त्री को मिलता है जो उस कुएं से पानी निकालने आई थी। And Jesus speaks to her and asks her for giving her a drink. और यीशु मसीह उससे बात करके कहता है कि वो उससे पानी मांगता है। And then Jesus tells her that he will give her living water. और उसके बाद यीशु मसीह उसको कहता है कि वो उसको जीवित पानी देगा। She was thirsting after the world and the lust of the flesh to give her that to fulfill her thirst. और वो ऐसे चीजों के पीछे भाग रही थी, इस संसार की जो अभिलाषाएं है जिससे उसकी प्यास शायद बुझ जाए। She had 5 husbands and she was living with a person who was not her husband. और वो पहले ही उसके 5 पति हो चुके थे और अब वो ऐसे पुरुष के साथ जी रही थी जो उसका पति भी नहीं था। So Jesus tells her that everyone who drinks of this water that she was drinking will thirst again. और यीशु मसीह उससे कहता है जो कोई ये जल पिएगा, जो जल वो पी रही थी, वो फिर प्यासा होगा। So that is what I need to always understand, that anything in this world, whatever it is, I will thirst again and again, more and more of that thing. और यही यीशु मसीह हमें याद दिलाना चाहता था कि इस संसार की जो कोई चीजें हैं, हम कितने भी बार क्यों ना उसे पी ले और उसके बाद हमें फिर और फिर उसकी प्यास लगते रहती है। In the 14th verse, Jesus said, "Whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst." और 14 वचन में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। So what is that referring to? It is referring to the Holy Spirit that fills our hearts and gives the eternal life in our hearts. और फिर यहाँ यीशु मसीह किस बारे में कह रहा है? वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है जो हमारे मनों को भरता है। It gives us satisfaction and takes away the thirst of this world. और इस पृथ्वी के चीजों के लिए जो हमारी लालसा है, पवित्र आत्मा हमारे मनों को भर के वो प्यास, वो लालसा निकाल लेता है। There's a line in one song which says, "There's no thirsting for the things of the world; they have taken wings." Sorry brother, can you repeat? There's no thirsting for the things of the world; they have taken wings. This is a line of a song. और एक गीत में ऐसे शब्द है, ऐसे पंक्तियां है कि अब मेरे पास इस संसार के कोई भी चीज के लिए ऐसी प्यास नहीं है। Long ago I gave them up and instantly. और बहुत समय पहले मैंने इन चीजों की प्यास छोड़ दी थी। All my burdens rolled away and my night was turned to day because the Holy Spirit abides with me. और मेरे सारे बोझ चले गए और मेरी रात वो दिन में बदल गया क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है। When the Holy Spirit is abiding in our hearts, we will not thirst for the things of this world. जब पवित्र आत्मा हमारे मन के अंदर रहता है तो पृथ्वी पर की जो चीजें हैं उनके लिए हम प्यास नहीं होगी। It will make us to long for things above. और उसके बाद हमारे अंदर ऐसी लालसा होगी कि हम जो ऊपर या स्वर्गीय स्थान की चीजें हैं उनके पीछे हमारी प्यास होगी। Jesus in the prayer that he taught us to pray, he said, "Your will be done on earth as it is done in heaven." जब यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाई उसमें उसने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। In heaven, God's will is done perfectly. No one disobeys God. It is always God's will that is done. और स्वर्ग में जो परमेश्वर की इच्छा है वो सिद्ध रूप से होती है, कोई भी वहां उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाता। So Jesus was telling us that in the earth also let our lives be such that we will more and more seek for the will of God to be done in our lives, to seek to do His will in our lives. और यीशु मसीह यही कह रहा था कि इस पृथ्वी पर भी और हम परमेश्वर से मांगे और उसकी इच्छा सिद्धता से पूरी करने की कोशिश करें। Heavenly life is a life without any condemnation. एक स्वर्गीय जीवन किसी भी दोष के भावना से मुक्त जीवन है। In Revelation, we see that John said, it is written about the accuser of the brethren has been thrown down, the one who accused them day and night. और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यूहन्ना ने कहा जो
दिन रात परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो दोष लगाने वाला था उसको नीचे फेंक दिया गया है। We know when Jesus was on the earth, the Pharisees brought to Jesus a woman caught in adultery, and Jesus had no word of condemnation to her. और हम जानते हैं कि सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जब फरीसी लोगों ने यीशु मसीह के सामने एक पापिनी स्त्री को वो लेके आए और उसको खड़ा किया, तो यीशु मसीह के पास उसके बारे में कोई भी दोष भरे शब्द नहीं थे। Jesus said that your sins are forgiven. You go and sin no more. और यीशु मसीह ने तो बस उसको यही कहा Neither do a condemn. कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। So that is the voice that I need to hear always. God, Jesus will never condemn me. He is always ready to forgive me. और ये एक वाणी है जो हर समय मुझे सुननी है कि यीशु मसीह कभी भी मुझ पर दोष नहीं लगाता, दंड की आज्ञा नहीं देता, वो हर समय मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। The blood of Jesus, as we sang in that song, is able to cleanse us from every sin. The most terrible sin of Jesus, the blood of Jesus is able to cleanse me completely. और जैसे हमने उस गीत में गाया, चाहे कितना भी भयानक या गंभीर पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह का लहू हमें उस पूरे पाप से शुद्ध करने के लिए तैयार है। Another thing that we find in heaven is God is constantly forgiving people who are asking forgiveness here on the earth. और स्वर्ग के बारे में एक और चीज हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर हर समय लोगों को क्षमा करता है, क्योंकि लोग यहाँ पृथ्वी पर से क्षमा मांगते हैं। He never delays in forgiving. Immediately when we ask forgiveness, He forgives us. परमेश्वर कभी भी क्षमा करने में विलंब या देर नहीं करता। जैसे ही हम क्षमा मांगते हैं वो तुरंत हमारी क्षमा करता है। If I have the spirit of heaven in my heart, I will be able to forgive everyone as Jesus has forgiven me. अगर मेरे मन के अंदर स्वर्ग की आत्मा है तो मैं लोगों को उसी प्रकार क्षमा कर सकूंगा जैसे यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया। How much Jesus has forgiven me is something that I need to meditate on and ask the Holy Spirit to reveal it to me more and more. और यीशु मसीह ने मुझे कितना क्षमा किया है इस बारे में मुझे मनन करना है और पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो और मुझे इस बात को दिखाए। Jesus said on the cross itself, He said that He told the Father to forgive them. Even the people who killed Him, Jesus was forgiven. Jesus said, Father, forgive them. और यीशु मसीह ने क्रूस पर भी उसके पिता से कहा, जो लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था उन्हें उन लोगों को उसने क्षमा की। In 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका दूसरा अध्याय 14th verse, it says, Paul says something there. But thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. और दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन लिखा है। पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। And then it says, we are the fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. और उसके आगे वो कहता है 15 वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। This fragrance is something, if I have applied a perfume, I don't have to, it will automatically, the perfume will go and spread to others and others can get that fragrance. और ये सुगंध ऐसा होता है जैसे मान लो हम कभी इत्र या परफ्यूम लगाते हैं तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उन तक वो सुगंध जाता है। So when Christ is in me and He is living in me, the fragrance of Christ will flow out to others. I don't have to, God will do that work in me, that the fragrance of Christ will go to others. और इसलिए जब यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है और वो उसका जीवन मेरे अंदर है तो यीशु मसीह की सुगंध अपने आप दूसरों तक पहुंचेगी। It will give life to others. It will give mercy and forgiveness to others. और वो सुगंध जो है, यीशु मसीह का जीवन जो है वो दूसरों तक जीवन ले जाएगा, दूसरों को वो क्षमा करेगा और दूसरों के ऊपर वो दया करेगा।
So let us really, Jesus said in one verse in the Beatitudes that in the Matthew 5 that blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. और यीशु मसीह ने मत्ती 5 में लिखा था कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो धन्य हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. So we can really thirst that, Lord, I want this life that you have given me freely. और इसलिए हम ये प्यास रख सकते हैं कि प्रभु मैं सचमुच इस जीवन को चाहता हूं जो तूने मेरे लिए मुक्त रीति से दिया है. Jesus said, he who thirsts, let him come to me and drink. Jesus is saying to come to him and drink from him. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए. यीशु मसीह ऐसा न्योता दे रहा है. Lord, we can pray and cry out to God, Lord, give me the thirst and hunger for you in my life, for your life to come in me. और हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं कि प्रभु तू मुझे ऐसी प्यास दे ताकि मुझे ये जीवन मिले और तू मेरे अंदर आकर जिए. The Lord will fulfill it in our lives. और परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन में पूरा करेगा. Amen. आमीन. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए. परमेश्वर सच में भला है कि परमेश्वर उसके पास आने वालों को सच में, जैसे वचन में हमने सुना, भरता है उस प्यास के साथ हम जब आते हैं. पिछले दिनों में जो बात मेरे मन में थी, जो परमेश्वर मेरे मन में इन बातों को सिखा रहा है, जिन बातों में सीख रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ, वो ये है कि परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भरता को लेकर आना. और ये बहुत ही जरूरी है मसीह जीवन का एक बहुत ही मुख्य भाग. जैसे कि परमेश्वर ये सिखाना चाह रहा है कि पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भरता मैं सीखूं. एक वचन का भाग मैं पढ़ना चाहता हूं जो है दूसरा इतिहास, उसका 14 अध्याय, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स 14. और ये वचन का जो भाग है इसके अंदर आसा राजा के बारे में लिखा हुआ है कि आसा राजा कैसे परमेश्वर के पास आता है और कैसे परमेश्वर उसको छुड़ाता है. यहाँ पे देखते हैं वचन के कुछ भागों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो मुझे आशीष मिले उससे. वो है 14 अध्याय से 16 अध्याय के बीच में हम देखते हैं कि आसा राजा जो यहाँ पर है वो 2 संकट का सामना यहाँ पे करता है. पहला संकट 14 अध्याय में है और दूसरा संकट जो है उसके ऊपर 16 अध्याय के अंदर आता है. हम देखते हैं कि इन दोनों ही केसेस के अंदर उसकी निर्भरता परमेश्वर पर कैसी बनी रहती है. और पहले उदाहरण में जो हम 14 अध्याय में देखते हैं, कुछ वचनों को मैं देखना चाहता हूँ. दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय, उसका दूसरे वचन में लिखा है कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था. और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने कितने अच्छे कामों को किया. वचन 5 में देखते हैं उसके वचन 6 में देखते हैं कि गढ़वाले नगर बसाए. और वहां पे देखते हैं 6 वचन के मध्य में लिखा है कि उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसको विश्राम दिया था. एक बहुत ही अच्छे मैं देख पाता हूं कि आसा राजा जो था, जैसे कि एक परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त किया हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना हुआ था. और वचन 7 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने चारों ओर से उसको विश्राम दिया था. और उसने बहुत ही अद्भुत काम इस्राएल के अंदर किए थे. बड़े बड़े जो मूर्ति थे, ऊंचे स्थान थे, वेदियों को ढा दिया था. और वहां पर 9 वचन के आगे हम देखते कि कूसी राजा जो है उसके ऊपर चढ़ाई करता है और उसकी सेना, जो राजा आसा की सेना से दुगुनी सेना और रथ उसके पास होते हैं. और वहां पर देखते कि बहुत ही अच्छी प्रार्थना मैं वहां पर देखता हूँ. वचन 11 के अंदर हम देख पाते हैं, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है. यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है. तेरे नाम का भरोसा करके हम इस बड़ी भीड़ के विरुद्ध आए हैं. यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल होने न पाए. इस बात को मैं देखता हूं कि पहली घटना जो हम देखते हैं कि पहला संकट जब आसा राजा पर आया, उसकी निर्भरता यहाँ पर मैं देखता हूं. इतना आशीष मुझे मिलता है कि अपने आप को निर्बल जानकर, यहाँ तक परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी है, सब कुछ है, लेकिन वो परमेश्वर पर अपना भरोसा लाता है. और उसके बाद देखते हैं 12 वचन में कि परमेश्वर उसके लिए लड़ता है. वहां लिखा है 12 वचन में, यहोवा ने कूशियों को और आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए. और 13 वचन के अंत भाग में लिखा है कि क्योंकि यहोवा और उसकी सेना ने के सामने वे हार गए, यहूदी बहुत सी लूट ले गए. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से उसको छुड़ाता है. और उसके दूसरे ही भाग के अंदर हम 16
अध्याय के अंदर देखते, उससे उसके पहले हम 15 अध्याय के अंदर उसने जो जो सुधार के काम किए और बहुत अच्छे अच्छे काम, आपको यदि समय मिलता है 15 अध्याय को, 14, 15, 16 अध्याय को जरूर पढ़े। बहुत ही आशीष मुझे इन वचनों को पढ़कर मिली कि कितने बड़े बड़े और अद्भुत कामों को आसा राजा ने किए। वहां पर उसने बहुत ही अद्भुत 12 वचन में तो लिखा है कि 15 अध्याय के 12 वचन में उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन से, सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज। एक होल हार्टेड डिसाइपल जो होता है उसका हृदय उसके अंदर हम देख पाते हैं। उसके बाद और एक चीज जो मुझे पसंद आई कि 16 वचन में लिखा है कि उसने अपनी राजमाता जो थी, क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर रही थी, इसके वजह से उसको भी राजमाता के पद से उतार दिया कि उसने मूर्ति पूजा को वहां पे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया। और हम देखते कि 16 वचन के अंदर एक दूसरा संकट आता है, वहां पर वो आराम के राजा के साथ वो संधि कर लेता है और वहां परमेश्वर पर निर्भर नहीं होता है। और वहां पर 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि क्या कुशी और लुबियों की सेना बड़ी न थी? परमेश्वर का जन आकर उससे कहता है कि रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा वहां पर रखा था, इस कारण उसने उसको तेरे हाथ में कर दिया। और यहाँ पे लिखा है कि 9 वचन में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती कि जिसका मन उसकी और निष्कपट उसकी सहायता में वह सामर्थ दिखाए, और तूने यह काम मूर्खता से किया है। और दूसरी बार वो है पूरी तरह से वहां पर असफल हो गया परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, और उसने मूर्खता का काम किया। और यही परमेश्वर हमको सिखाने चाहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना चूक जाते हैं। जब परमेश्वर ने उसे एक विजय दिया उसके बाद भी उस पाठ को वो नहीं सीख पाया, और वहां पर पहली जीत से वो नहीं सीख पाया परमेश्वर पर पूरी तरह से। ये मेरे लिए एक चुनौती मिलता है कि हमारे जीवन में कई बार हम उस परमेश्वर पर भरोसा, जब पहली विजय बड़े बड़े संकट से परमेश्वर छुड़ाता है, हम एक विजय में आते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत हम अपने आप पर, अपने ज्ञान बुद्धि पर निर्भर होना आरंभ कर देते हैं। हम देखते कि कैसे वो वहां पर पूरी तरह से हार जाता है। उसके बाद 11 वचन में बीमार हो जाता है, वहां पर भी वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाता है, निरंतर परमेश्वर पर निर्भरता नहीं ला पाता है। और यहाँ पर जो 9 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि वहां लिखा है कि 8 वचन के अंतिम भाग में, तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। और मुझे ये वचन बहुत ही चुनौती दिया कि मेरे लिए ऐसा ना कहा जाए कि किरण ने यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखा था, लेकिन ये कहा जाए कि आज भी इन कठिन हालातों में या अच्छी परिस्थितियों में मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। और इस वचन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना, हर हालात के अंदर, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सामान्य मामलों में हो, तो हम परमेश्वर पर, उन सारी बातों के ऊपर हम परमेश्वर पर भरोसा ला सकते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखना एक इस भाग को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं परमेश्वर पर कितना भरोसा रख सकता हूं उस जीवन के वृक्ष के अंदर। और यही संघर्ष मेरे प्रतिदिन जीवन के अंदर मैं देख पाता हूं कि अपने आप का भरोसा लेना। नीति वचन 3:5 में जैसे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। और मैं देखता हूं कि अपने अनुभवों का, अपने ज्ञान और बुद्धि का, अपने स्रोत हो सकता है पैसा, या अपनी नौकरी हो सकता है, अपने गिफ्ट टैलेंट जो परमेश्वर ने दिए है। कई बार हो सकता है कि परमेश्वर से जुड़े बिना संगति के ऊपर भी एक सहारा करना। मैं परमेश्वर से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन संगति के ऊपर कहीं ना कहीं मैं निर्भर हो रहा हूं, या संगति के ऊपर मैं आनंद उठा रहा हूं, लेकिन उससे क्या परिणाम आएगा? मैं वही जीवन, पाप में जीवन, वही चिंता, बोझ, परेशानी और क्रोध के अंदर, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई परिणाम नहीं आ रहा है, धीरज नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है। मैं देख पाता हूं कि मेरा जीवन कहीं ना कहीं इस दौर में संघर्ष करते हुए नजर आता है कि मैं अपनी समझ का सहारा प्रतिदिन लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो जीवन का वृक्ष जो आदम और हवा को कहा गया था, उससे खाने की कोशिश नहीं करता हूं। वो जीवन का वृक्ष ये है कि मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखूं। और यही जीवन परमेश्वर चाहता है कि हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर, हम इस जीवन के अंदर प्रतिदिन आए, और जहां पर सारे पवित्र आत्मा के फल जो हमारे जीवन में आएंगे, क्योंकि हम उस जीवन के वृक्ष जब हम खाएंगे, हमारे जीवन में निरंतर धन्यवाद, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, हमेशा निरंतर हम आनंद मना पाएंगे। हर समय हम धीरे उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और जब लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम आनंद कर पाएंगे, उन्हें माफ कर पाएंगे, निरंतर प्रभु के सन्मुख में बने रह पाएंगे। और यही चाहता हूं कि पतरस जब अपने अनुभवों के ऊपर शायद वो आधार रखता होगा, तब वो पानी में डूबने लगा।
पर परमेश्वर, हमारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से आइए परमेश्वर पर भरोसा लाएं। आज अगर ऐसी कोई भी बात है, आसा राजा के समान शायद हमने एक समय पर परमेश्वर भरोसा रखा था, जहां परमेश्वर ने हमें बड़ा बड़ा विजय दिया था, लेकिन दूसरे समय पर कहीं ना कहीं हम अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ पर भरोसा रख रहे हैं और वहां पर हम हार रहे हैं, हम गिर रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, हम उस जयवंत जीवन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि, पौलुस कहता है गलातियों 3 अध्याय के अंदर कि तुमने आत्मा में शुरुआत तो की थी, लेकिन अब तुम शरीर में आगे बढ़ रहे हो। क्या हम आज भी आत्मा में शुरुआत करके आज हम शरीर के अंदर कार्य या उससे परिणाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम असफल होंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था कि प्रभु कहता है कि केवल तुझे अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखना है और किसी बात पर नहीं, और सारी चीजें जिससे तू संघर्ष कर रहा है उन सब चीजों के ऊपर परमेश्वर हमें आशीष देगा। और कई बार मैं देखता हूं कि परमेश्वर पर जो निर्भरता जो है वो एक विश्वास का प्रतीक है। जब मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख पाता हूँ, संपूर्ण मन से भरोसा या नहीं निर्भर रह पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर घमंड है किसी न किसी चीज के बारे में, इस कारण मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहा हूँ। कई बार मेरे अंदर एक भावना है कि सारी चीजों को मैं अपने आप से नियंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनुभव है, मैंने बातों को सीख लिया है, मैं उस बात में पूरी तरह से परमेश्वर पर समर्पण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन के सिंहासन के ऊपर मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर नियंत्रण करूँ। अंत में एक बात मैंने कहीं पर सुनी थी जो मुझे याद आती कि परमेश्वर पर संपूर्ण तरह से निर्भर रहना वो पूरी तरह से एक समर्पण करना है, तब हम सारे तरफ से हम एक रेस्ट को, एक विश्राम को प्राप्त करेंगे। और ये समर्पण क्या है? एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा कि एक समर्पण परमेश्वर के इस प्रकार है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को उस कागज के ऊपर लिखते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारी प्रार्थना की विनती है, और हम परमेश्वर के पास जाकर उससे कहते हैं कि प्रभु तू यहाँ पे अपने साइन को कर, क्योंकि मुझे सारी चीजें चाहिए। लेकिन समर्पण जो है उसके विपरीत है। हमें कोरा कागज जो है अपनी खुद की सिग्नेचर करके परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और उससे कहते हैं प्रभु जो तेरी इच्छा है, प्रभु जो तेरी मर्जी है, इस कागज के ऊपर लिख प्रभु, और ये मुझे प्रभु स्वीकार है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। और आए हम परमेश्वर पर उस समर्पण को लेकर आए कि प्रभु हम चाहते कि प्रभु हमारा मसीह जीवन एक आनंद से भरा हुआ जीवन हो। संपूर्ण मन से प्रतिदिन हम बहुत सारे निर्णय को मैं करता हूँ और मैं मानता हूँ कि प्रभु मुझे प्रतिदिन इस जीवन के वृक्ष से खाने की जरूरत है। अगर मैं नहीं खा रहा हूँ उस जीवन के वृक्ष से, कहीं ना कहीं वो मुझे डुबा देगा। कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के पास उस आत्मिक जो चाल को मुझको चलना है, उस दौड़ को दौड़ना है, मैं शायद उसको नहीं दौड़ूंगा। आइए हम परमेश्वर के पास उस अनुग्रह को मांगे। हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर हम अपनी समझ का सहारा न ले, अपने कलीसिया के अंदर हमारी संगति और भाई और बहनों के साथ किसी भी चीज में, हमारे जॉब के समय पर कहीं पर भी हम अपनी समझ का सहारा न ले, लेकिन परमेश्वर ने एक नया मार्ग हमारे लिए खोला है और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी क्रूस की ओर का मार्ग है, जहां पर हम केवल उसके ऊपर देख सकते हैं उद्धार के कर्ता, और उसके ऊपर निर्भर होकर हम केवल आनंद उठा सकते हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम प्रतिदिन प्रतिक्षण उस जीवन के वृक्ष से खाकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीख सके। आमीन। Today, thank God for this wonderful message by brothers Biju and brother Kiran. और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत संदेश के लिए जो मैंने सुना भाई बिजू और भाई किरण से। Yes, I am also working on that areas also. और मैं खुद भी अपने जीवन के इन क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। Today, I just want to focus on the topic about the root of a plant. Sorry brother, The root of a plant. और हमारा जो पौधा है, हमारा जो पेड़ है, उसकी जड़ कहाँ है, उसके बारे में मैं सोच रहा था। Actually, I have a small kitchen garden in my place. और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पास भी एक छोटा सा बगीचा समान है। When I process these seeds by watering, light and air. और फिर वहाँ जो बीज होते हैं जो उनके लिए पानी और हवा और जो धूप होती है। Yes, the first part, the white part comes out from the seed, that is the root. और सबसे पहली चीज जो उस बीज से बाहर आती है वो होता है जड़। Yeah, but my little son thinks that this is a budding plant, new plant. पर मेरा जो छोटा बेटा है उसको तो लगता है कि ये जड़ नहीं, यही पौधा है। That's why he always places this small root outside the soil. और इसलिए हर समय वो जो छोटी जड़ है
वो उस मिट्टी से बाहर लगाता है, But we know that this should be placed inside the soil. पर हम जानते हैं कि ये असली में जड़ है और इसको मिट्टी के अंदर डालना है। And this root draws the water from the soil, and the first leaves comes out, rest of the part of the seed. और ये जो जड़ है ये नीचे से मिट्टी से पानी को लेगा और फिर ऊपर तक वो पौधे तक पानी को पहुंचाएगा। Yes, and slowly the plant is growing up from the soil, and we know the root is the heart of the plant. और धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगता है और वो जो जड़ है वो उस पौधे के एक हृदय के समान है मानो। And we always try to uproot the unwanted plant so that the valuable plants may grow well. और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो चीजों को नहीं चाहते उसके आजू बाजू उन सारी चीजों को हम उखाड़ दें ताकि वो पौधा अच्छे से बढ़ सके। Yes, similarly the Bible says that our inner garden have their two type of roots exist, good or evil. और उसी प्रकार बाइबल हमें सिखाती है कि जो हमारा अंदरूनी जो अंदर का जो पौधा है उसके भी दो प्रकार के जड़ होते हैं, एक अच्छा जड़ और एक बुरा जड़। We know that 1 Timothy 6 verse 10 says, "For the love of money is the root of all kinds of evil." और हम जानते हैं कि पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है कि जो रुपए का लोभ है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। Yes, the worldly things that comes under this topic of money. और सारी सांसारिक चीजें जो इस पैसे के नीचे है। Another verse from Hebrew 12:15, the last part. और दूसरा एक वचन है इब्रानियों 12 उसका 15 वचन उसका अंतिम भाग। Lest any root of bitterness springing of trouble you, and thereby many be defiled. और उसका अंतिम भाग, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। Yes, if we allow bitterness to creep into our heart, and if we become bound up against others, we come short of the grace of the God. और अगर हम किसी कड़वे जड़ को फूटकर हमारे मन में पनपने दे और दूसरों के प्रति हमारे मन में कड़वाहट हो तो फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह है उससे हम चूक जाएंगे। Yes, and have allowed ungodly characteristics of bitterness to sink its deadly root into our heart. और ये तब होगा जब हम इस अभक्तिहीन जो ये स्वभाव है कड़वाहट का, उसको अगर हम अपने मन में जड़ पकड़ने दे तो। Yes, which defile us before the Lord and causes countless troubles in our own life. और जो परमेश्वर के सामने हमें भ्रष्ट करता है और अपने ही जीवन में बहुत से समस्याओं को खड़ा करता है। Yeah, yes, and also in other lives too. और दूसरों के जीवन में भी। So, brother and sister, it is important to examine ourselves always. और इसलिए भाई और बहनों ये बहुत जरूरी है कि हम हर समय अपने आप को परखें। To see whether bitterness is being matured and nurtured and watered in our own life, our own heart. ताकि हम इस बात को जांचें कि कहीं हम किसी कड़वाहट के जड़ को अपने ही जीवन के अंदर बहुत संभाल के उसको पानी तो नहीं दे रहे। Sometimes I feel that that the root of bitterness is still very much exist in my heart. और कई बार मुझे लगता है कि ये जो कड़वाहट की जड़ है ये आज भी मेरे मन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर कहीं है। Many times I try to cut the upper part of that plant, the plant of bitterness. और कई बार ये कड़वाहट का जो पौधा है इसके ऊपरी पत्तों को मैं काटने की कोशिश करता हूँ। And I thought that I am become holy. और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं पवित्र होते जा रहा हूँ। And sometime again, it shows the head. Different circumstances again, it shows its head again. और फिर किसी अलग परिस्थिति में फिर एक बार ये कड़वाहट अपने सिर को खड़ा करता है। Yeah, this is here only the one chemical which is required, which can destroy the root day by day. और एक ही चीज है जो इसको दिन प्रतिदिन इस जड़ को मिटा सकता है। Yeah, the physically it's not possible to root out every part of the root, but the chemical can destroy the root day by day. और शायद शारीरिक रूप से उस जड़ को पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सकता, पर एक केमिकल होता है जो दिन प्रतिदिन उसको उस जड़ को पूरी तरीके से मिटा सकता है। Yeah, and that is the Holy Spirit only. और वो है सिर्फ पवित्र आत्मा। Yes, today Brother Biju also focused that Holy Spirit, we need the Holy Spirit day by day.
और आज भाई बिजू भी वही बात कह रहे थे कि हमें दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा की जरूरत है। And yesterday, Brother Zach also emphasized that we also be being filled with the Holy Spirit continuously. और कल भी भाई जैक ने बताया कि दिन प्रतिदिन हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। And another root in Ephesians chapter 17, सॉरी ब्रदर, एफिशिएंस। another root, this Ephesians 3:17, और दूसरा एक जड़ हम देखते हैं इफिसियो उसका 3 अध्याय और 17 वचन, that the Christ may dwell in your heart by faith, that और ye being rooted and grounded in love. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। Yes. May our root go down and down deep into the soil of God's marvelous love. और हमारी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर के जो अब हमारे प्रति प्रेम है उसके अंदर उसको बहुत गहराई से जाकर जड़ पकड़नी है। If we are rooted in the love of God, और अगर हम परमेश्वर के प्रेम के अंदर हम उस नींव डालकर जड़ पकड़े हुए हैं तो then the love will nourish and the strengthen us and filling us with the very nature of God Himself. और फिर वो जो प्रेम है वो हर समय हमारे मन को सामर्थ देगा और परमेश्वर के स्वभाव से हमें भर देगा। And Brother Kiran also said that depending upon the God. और भाई किरण भी बता रहे थे कि परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना। Yes, our main motto is to sow the fruit of Holy Spirit both inside our home and outside our home. और हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि पवित्र आत्मा का जो बीज होता है वो अपने घर में और दूसरी जगह भी हम लगाए। And last Wednesday also, Brother Abu also emphasized that we have to be witness everywhere. और पिछले बुधवार को भी भाई अबू कह रहे थे कि हम जहाँ कहीं हैं वहाँ हमें गवाही बनकर रहना है, whether it's home or outside the home. भले ही वो घर में हो या घर के बाहर हो। Yes, brother and sister, let us try to emphasize the second root and destroy the first root, which is the root of evil. और इसलिए भाई और बहनों हम कोशिश करें कि हम ये दूसरे जड़ को पकड़े और दूसरे जड़ को लगाए और जो पहला जड़ है उसको पूरी तरीके से नष्ट करें। Thank you. जो मैंने ये दिन में सीखा उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये दिन के लिए आयुब का 2:5 इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये शैतान के शब्द हैं। जब हम कोई परीक्षा या कोई बीमारी का सामना करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, क्या हम प्रभु की महिमा देते हैं या हमारे मुंह से कि प्रभु तूने ये क्यों किया। जैसे वो 2 चोर के विषय में जिसने यीशु मसीह के आजू और वो बाजू लटका, उन्होंने कहा, एक ने कहा लुक्का का जो लटका गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को हमें बचा। इस पर से उसे डांट कर कहा, क्या से भी नहीं डरता, तो भी तू वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो दूसरे चोर ने अपने पाप को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम तो उसी दंड पा रहे जो हमने किया है। तब यीशु ने उनसे कहा, यीशु से उसने कहा, तब उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आयुब का 2:10 में उसने उससे कहा, तू एक स्त्री के बातें मूर्ख स्त्री की बातें क्यों कहती है। जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और इसको पूरा काम करने दो ताकि हो जाओ। तुमने किसी बात की मुझे एनकरेज हुआ इस वर्ष से कि जब हम कोई परीक्षा या कोई बीमारी का सामना करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे आयुब ने कहा, क्या हम परमेश्वर से अच्छी वस्तु हमेशा लिए, क्या दुख ना ले।
और कितनी आनंद की बात है जो आयुब ने कहा कि अपने मुख से उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। जैसे शैतान उसको परमेश्वर के सामने हंसता है, जाके तू उसके हड्डियों को छू तो वो तेरे मुंह के सामने निंदा करेगा। क्या आज हम जो इन दिनों में जी रहे हैं, या मैं भी कभी परमेश्वर से पूछती हूँ ऐसा क्यों, क्या मैंने ऐसे पूछा। तो हम परमेश्वर, शैतान हमेशा हमारे जीवन में हर परिस्थिति डाल सकता है। कोई बीमारी है तो क्या हम परमेश्वर से कहे, क्या परमेश्वर तू नहीं जो चोर ने कहा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को कि हर एक याकूब की किताब में बंदों में, भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो कि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो जो भी परीक्षा आती है तो इसके लिए धन्यवाद देना है कि क्या हमारे मुंह से भीतर क्या है वो बाहर आता है। क्या हम धन्यवाद देते हैं या हम उस चोर के समान या उस स्त्री के समान दोष लगाते हैं। क्या क्यों इतना तकलीफ है, क्यों ये बीमारी है, क्यों हम मसीह हैं, क्यों हम लोग के लिए प्रार्थना करते तो ये हमें क्यों है। क्या ऐसा हम परमेश्वर की निंदा करते, इससे शैतान बहुत खुश होता है जब हम परमेश्वर के विषय में ऐसी बातें कहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमको प्रभु हर दिन एक सिखा रहा है कि हम अपने मुंह को हम किस तरह से यूज करें, कि प्रभु का महिमा हो। कि जो भी परिस्थिति, जो भी बीमारी है, प्रभु हमें लेके हमको बना रहा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू। जो वचन हमने सुना है प्रभु हमें उस वचन के मुताबिक जीने के लिए सामर्थ्य दे। और मैं इस दिन गलाती 5 का 22-23 अध्ययन कर रहा हूँ। वो आत्मा का फल नम्रता, धीरज, प्रेम, मेल मिलाप, विश्वास, संयम, ये सब प्रभु इस दिन सिखा रहे हैं। प्रभु उसी वचन से, वचन के आधार पर हम नम्र और चूर्ण होकर एक दूसरे को प्रेम करते हुए और एक दूसरे को चिंता करते हुए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में समय बिताते हुए जी सके। और मैं प्रभु से हर रोज प्रार्थना करता हूँ हमारे CFC के जितने भी भाई बहन हैं जो कमजोर बीमार हैं उनके स्वस्थ के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु हर दिन सहायता करे। जो अभाव में है, घटी कमी में है, उनको भरपूर है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर ये ब्रह्मांड का मालिक है, वो अरबों पति है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और जब भी हमें कोई दुर्बल कमजोर होते हैं, जब कोई शरीर में दुख बीमार होते हैं, उस समय में भी हम प्रभु में धन्यवादी होकर महिमा दे सके और प्रभु के लिए जी सके। और हम लोग जितने भी नेपाल में हैं, हमारे लिए भी आप लोग अपना भाई बहन समझकर प्रार्थना में याद कर दीजिए। और हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं आप लोग हमें निरंतर प्रार्थना करते रहे हैं। और इसी के लिए हम धन्यवाद देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आज का वचन के लिए। निरंतर हम पवित्र आत्मा से भरना है और इस प्रकार से चलना है। और परमेश्वर को मैं ये भी धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग मेरे लिए प्रार्थना किया। पिछले 15 दिन में कुछ तबीयत ठीक नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सहायता किया, मदद किया है। उस समय पर में जाना पड़ा था, क्या टेस्ट करना है, क्या है बोल के। और वन ऑफ माई फ्रेंड आया था, बहुत निराशा हो गया, आप क्यों ऐसा रहते हैं, हॉस्पिटल में जाके चेक करो और क्या है वो हिसाब से इलाज करो। क्योंकि मैं ये जो होम्योपैथी मेडिसिन लेता था, वो डॉक्टर ने बोला था कि कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, आप मैं जो मेडिसिन देता है वही लेते रहो बोल के। सो इस प्रकार से कुछ हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया तकलीफ में जाने के समय ये भाई ने बहुत नाराज से मुझे इस प्रकार से घर में आके मिलकर बोल के गया। लेकिन मैं देखा था प्रभु आज एलोपैथी मेडिसिन लिए तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रभु आप
जिस प्रकार से मेरे पापों के कातिल आप जिस प्रकार से आपने क्रूस उठाया, ये तमाम चीजों को देखने के बाद ये जो तकलीफ है मेरे शरीर में, ये तो कुछ नहीं है, मैं और सहन कर सकता है। तो इस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर का वचन में एक मुझे मिला था कि भजन संहिता 123 में और दूसरा वचन देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। और इस वचनों को देखने के बाद मैं सोचा था कि जो काम करने वाला वो मालक और मालकिन के उनके आतंक देते रहते, कभी उनके महीने के पगार मिलता है बोल के। मैं भी कंपनी में काम किया था कि आज तक मेरे कंपनी में, रिपीटेड कंपनी, कौन सा भी महीने में पगार लेट नहीं मिला। लेकिन मेरे नीचे जो काम करने वाला डेली वेजेस है, उन लोग हमेशा जो सुपर कॉन्ट्रैक्टर है उनके ऊपर उनका नजर हमेशा रहता है। 1 तारीख होने के बाद 2 तारीख देंगे क्या, 5 तारीख देंगे क्या, 7 तारीख देंगे क्या, 10 तारीख देंगे क्या बोल के पगार के लिए उन लोग राह देखते थे। सो इस चीजों को मैं याद किया था, जैसा उन लोग अपने पगार के लिए हमेशा याद करते हैं, तो एक सही तारीख नहीं रहता है उनके लिए। तो वो आज वैसा ही मैं आपके पास मेरे नजर को आपको पास रखता हूँ। हाँ, यदि मेरे नजर आप जब तक मुझे चंगाई देंगे नहीं, जब तक मेरा नजर आपके ऊपर रहेगा, उसके कातिल जो भी जिस समस्या में जाना पड़ेगा चलेगा बोल के। सो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है, सहायता किया है, पूरी रीति से मुझे विजय मिला इस बीमारी से। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। Today morning I was just listening to something from Brother Zach from Matthew 28 verse 19, not 19, verse 20. आज सुबह मैं एक वचन से प्रोत्साहित हुआ जो भाई जैक भी बता रहे थे। मत्ती उसका 28 अध्याय 20, last verse. So there it says, teaching them to observe all that I commanded you. और वहां लिखा है कि और जो सब बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ। So he was saying that Jesus did not just say that teaching them all that I commanded you. That verse does not say teaching them all that I commanded you. और ये सारी चीजें, मतलब वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि जो सारी चीजें मैंने आज्ञा दी है वो तुम उसे सिखाओ, But he says teaching them to do what I commanded you. लेकिन जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी है उसे तुम्हें करना है, उसे करना सिखाओ, उसे मानना सिखाओ। हाँ, so it is not just I just come and just give a preaching about what Jesus has said, but I teach to do what Jesus has said. और इसका मतलब ये नहीं कि जो यीशु मसीह ने सिखाया है उसको आकर मैं एक प्रचार करूं या कुछ बताऊं, लेकिन मैं उसको आपको मानना सिखाता हूं उसे। And he was saying that I should not be a preacher who just comes and tells people without any that word working in my life. और ये वचन भी दिखाता है कि ऐसा मैं एक प्रचारक नहीं या ऐसा वचन का बोध करने वाला न बनूं कि जो वचन मेरे स्वयं के जीवन में कार्य नहीं करता है। That I come and preach to others. और वैसा वचन में जो मेरे जीवन में कार्य नहीं करता मैं औरों को सिखाता हूँ। For example, if I am a person who gets angry, I come and tell that we can have victory over anger, then I'll be a hypocrite. और यदि मैं स्वयं के अंदर क्रोध है लेकिन मैं किसी और के ऊपर और से ये कहूं कि क्रोध के ऊपर विजय पालेंगे तो मैं एक फरीसी हूं या पाखंड मुझ में है। Or if I have dirty, evil sexual thoughts in my heart and I tell others that we can have victory over sexual thoughts, then I become a hypocrite. और यदि मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों के अंदर वासनाओं से भरे एक लैंगिक विचार यदि और मैं औरों से कहता हूं कि उसके ऊपर विजय पाओ तो मैं एक पाखंड से भरा व्यक्ति हूं। But I can share, but if I share in my struggles also where I'm seeking for victory, I should always say that I am still struggling and God is helping me in some areas, but I'm still
given an impression that I have a victory over anger, and still there is areas where I get irritated in my heart, and while dealing with children and all. So God has convicted me in my heart about that thing. परमेश्वर ने एक क्षेत्र के अंदर जो मुझे बोध दिलाया कि मैं एक बाहर एक छवि दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे भीतर एक क्रोध है जब मैं बच्चों के साथ व्यवहार करता हूं या किसी और चीजों के अंदर, उसको मैं पाता हूं. I ask God to give me a thorough repentance about this area where I have shown hypocrisy in my sharing the word. और एक क्षेत्र के अंदर जहां परमेश्वर का वचन बांटने के अंदर मैं पूरी रीति से मैंने जहां पाखंड किया है, वहां पर मैं पूरी तरह से मन फिराता और माफी मांगता हूं. And I believe that in the coming days I can share more with the light and not with a hypocritical attitude. और आने वाले दिनों के अंदर ऐसा हो कि मैं एक प्रकाश जो मेरे ऊपर है उसके द्वारा मैं बांट सकूं, या एक पाखंडी स्वभाव के साथ मैं बांटूं नहीं. आमीन. मत्ती 6:31 से 34. इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनंत जातियां इन सब वस्तुएं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता परमेश्वर के राज और उसकी धर्म को की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी. अंत काल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. आज के लिए आज ही का तो बहुत है. तो जब मेरा नाक बंद हो गया था तो फिर मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मेरे को प्रभु ने ये वचन से हेल्प किया कि चिंता नहीं करना है कि क्या होगा. और फिर 1 कुरिन्थी 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. तो इससे मुझे ये एनकरेज किया कि हमको सहन से बाहर परमेश्वर तकलीफ नहीं देगा. तो मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ कि गॉड ने मुझे ये वचन से एनकरेज किया कि हमें कल हम तकलीफ नहीं देगा. Thank you. Thank you, Grace. Very encouraging word. Somebody else wants to share in the similar way, he can share. We can all learn from Grace and Sarah. और जैसे ग्रेस और सारा ने इतने छोटे हैं, उन्होंने जो बांटा है हमारे साथ, आप भी ये समय ले सकते हैं और बांट सकते हैं इसी प्रकार. I like to read from Jeremiah 17:9 and 10. और यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10. Kiran, you read. यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है. मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं. Really God was showing my heart condition. और परमेश्वर मुझे मेरे हृदय की जो अवस्था उसको दिखा रहा था. The heart is more deceitful than all else. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि सबसे अधिक जो हृदय जो है अधिक धोखा देने वाला है. And is desperately sick. और यहाँ पर वो असाध्य रोग से वो जकड़ा हुआ है. Who can understand it? और उसे कौन समझ सकता है. I was thinking, I cannot understand what is actual my heart condition. और मैं अपने आप से मैं नहीं समझ सकती कि मेरे हृदय की वास्तविक परिस्थिति या अवस्था क्या है. Actually, condition is so deceitful and desperately sick.
और मेरे हृदय की असली अवस्था तो बहुत ही अधिक धोखा देने वाली और असाध्य रोग से लगी हुई है, So I am not able to see that. और मैं अपने आप से उसे नहीं देख सकती. But the Lord, He is searching the heart and testing my mind. लेकिन वो परमेश्वर है जो हृदय को, मन को खोजता, हृदय को जांचता है. So only He can show my actual condition. और केवल परमेश्वर ही मेरी वास्तविक जो परिस्थिति है मुझे दिखा सकता है. So if I am not depending on God, God cannot show my heart condition. और यदि मैं परमेश्वर पर नहीं निर्भर रहती हूँ तो परमेश्वर मुझे मेरी हृदय की अवस्था नहीं दिखा सकता. So I am not asking God, Lord, show me my actual condition of my heart. If I don't have that prayer in my life, और यदि मेरे जीवन में ये प्रार्थना नहीं है कि प्रभु तू मेरे जीवन की सच्ची अवस्था मेरे हृदय की तू दिखा, then God cannot show me what is actual my condition. तो परमेश्वर हमें नहीं दिखा सकता कि हमारी वास्तविक हालात क्या है. So I have to depend on God for this to show my heart condition. और हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है ताकि परमेश्वर हमें हमारे हृदय की परिस्थिति अवस्था को दिखा सके. In Message Bible verse 10 really touched my heart. It's written like this: I get to the heart of the human. और यहाँ पर मैसेज अनुवाद में लिखा है कि एक मनुष्य का हृदय जो है वो मुझे प्राप्त होता है. But God search the heart and examine the mind. लेकिन परमेश्वर है जो सारे मन और हृदय को जांचने वाला है. I treat them as they really are. और मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसे वे हैं. Not as they pretend to be. और उस प्रकार नहीं जिसका वो दिखावा या ढोंग करते हैं होने का. I got a lot of pretense in my life. और मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसे दिखावे की बातें. So showing which is actually not my condition outside. और बाहर इस रीति से दिखाना जहां पर मेरी वास्तविक हालात नहीं है, उस रीति से दिखाना. So I need to really trust God to really treat my heart as they really are. और सच में मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है ताकि मुझे दिखा सके मेरे हृदय पर उस रीति से व्यवहार करना जैसा मेरा हृदय वास्तविकता में है. So then God will start showing my actual condition of my heart in each day. तो प्रतिदिन परमेश्वर मेरे हृदय की वास्तविक हालात मुझे प्रतिदिन प्रकट करेगा. Otherwise, the way of the word we heard, the man who came to the wedding without a wedding cloth. नहीं तो जैसे हमने सुना कि वो व्यक्ति जो वो विवाह का पोशाक पहने बिना उस विवाह के अंदर आया. If I am not continuously seeing my own heart condition, I also after some time I get some victory. Then I also feel that I don't need the righteousness of Jesus. और यदि मैं अपने हृदय को निरंतर नहीं देख पाती हूँ तो कुछ विजय पाप के ऊपर मिलने के बाद मैं ये सोच लूंगी कि अभी भी मुझे परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता नहीं है. He was good and he thought his dress is enough to come to the wedding. और वो व्यक्ति ने सोचा कि वो तो अच्छा है और उसका पोशाक जो है पर्याप्त और अच्छा है उस विवाह के अंदर जाने के लिए. There was a time in my life also. I also was not seeing any of my sins in my life. और मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय था कि जहां मैं अपने जीवन के अनेक पापों को नहीं देख पा रही थी. I felt I am good. I am very spiritual. मैंने ये सोचा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत आत्मिक हूँ. Then I understood the deception of my heart. और तब मैंने हृदय का धोखा मैंने जाना. Then I start, Lord, you show me my heart. तब मैंने कहा प्रभु तू मेरे हृदय को मुझे बता दे. Then God started showing my heart conditions. और तब परमेश्वर ने मुझे मेरे हृदय की अवस्था को दिखाना आरंभ किया. So if I am not seeing daily sins ruling in my life, different areas, I will also feel that I am good. और यदि मेरे प्रतिदिन के जीवन में अनेक क्षेत्रों के अंदर पाप को राज्य करते हुए प्रतिदिन में अगर नहीं देख पाती हूँ तो मैं भी इस प्रकार ही सोचूंगी कि मैं अच्छी व्यक्ति हूँ.
if I am seeing my own heart condition, then I need that I will go to Jesus, that the righteousness of Jesus. Always I need that need I will always have in my heart. और यदि मैं अपने हृदय की अवस्था को जान जाऊंगी तो उस यीशु के पास जाकर अपने हृदय की उस अवस्था को जानकर उसके पास में जाऊंगी हमेशा। That the righteousness of Jesus, every day of my life, I need that. और मुझे मेरे प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता की जरूरत है। With that only I can go to God. और उसी के साथ ही मैं परमेश्वर के पास जा सकती हूँ।